Bismillahirrahmanirrahim. So today we are here to explain the lecture about management of class 2 malocclusion for final year various students. सबसे पहले हम बात करेंगे what is normal, ideal and gold standard occlusion. ठीक है. So the dental objective for the ideal occlusion is ideal overjet 1 or 2 mm, ideal overbite, coincident midlines, class 1 incisor and canine relationship, fully intercuspid molar relationship in class 1, 2 or 3, tight contacts, complete leveling and alignment and functional occlusion. So these are the objectives, dental objectives for the ideal occlusion. We will go for the facial skeletal objectives. They are well balanced facial profile, straight facial profile, means the forehead, nose and the lips and the chin in same line. So normal near normal vertical facial dimensions, improved competency of the lips, balanced lip profile, no lip recurrency and recurrency, ideal incisal display on smile and at rest, ideal aesthetic line, smile arc and normal temporomandibular joint function. The other is classes. The classes are three. The class one is when the upper first molar mesiobuccal cusp occludes in the lower groove of the lower first molar. In class 2, the distobuccal cusp of the upper first molar occludes in the groove of the lower first molar. While in class 3, the lower molar is mesial to the upper first molar. So class 2 is further divided into class 2 div 1, class 2 div 2 and class 2 subdivision. Okay, and class 3 is divided into true class 1, pseudo class 3, true class 3, pseudo class 3 and class 3 subdivision. We are talking about the class 2 malocclusion. So there are two classes, class 2 malocclusion, dental class 2 and skeletal class 2. Okay, so dental class 2 is further, I already told you that dental class 2 is also divided into two subtypes, which one is class 2 div 1 and class 2 div 2, while skeletal class 2 is when the maxilla and mandibular are in deficient or in increased positions. So class 2 div 1. Class 2 div 1 is bilaterally mesial position upper first molars with narrow maxillary arch with protruding upper incisor. This one is class 2 div 1. Etiology की बात करें, so it can be heredity, it could be due to speech defects, abnormal sucking habits, psychogenic problems, habits. Habits can be thumb sucking, finger sucking, digit sucking, tongue thirst, lip trap, lip biting, nail biting. Okay, and can be due to mouth breathing. So these are the etiology. Class 2 D1 malocclusion features की अगर वहाँ बात करें तो proclined upper incisors. The upper incisors are proclined. Okay, so increased overjet होता है उसके अंदर. Class 2 canine and molar relationship होते हैं. Procumbent upper lips. Convex facial profile with acute nasolabial angle. Nasolabial angle जो होता है वो बहुत acute होता है, जिसकी वजह से जो है फेशियल प्रोफाइल जो है वो बहुत ही अच्छा लुक नहीं दे रही होती. तो वी आर गोइंग फॉर द एक्सट्रैक्शंस इन दिस केसेस टू अचीव बेटर रिजल्ट्स. Cephalometric एनालिसिस की बात करें, सो क्लास 2 डिव 1 अपर इंसाइजर टू एसेंट प्लेन एंगल इंक्रीज होता है. इंक्रीज अपर इंसाइजर सॉफ्ट टिश्यू लीनियर मेजरमेंट्स होती हैं, और इसके अलावा जो है स्टीप मैंडिबुलर प्लेन एंगल्स भी होते हैं. मैनेजमेंट ऑफ डेंटल क्लास 2 मलोक्लूजन. अब अगर हमारे पास डेंटली क्लास 2 है, डेंटली मीन्स अगर उसके जो मोलर रिलेशन और कैनाल रिलेशन है वो 2 है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे. ये हमारे पास पिक्चर मौजूद है. इसके अंदर आप देखें कि जो इंसाइजर्स हैं, जो आगे के दांत हैं, वो कितने ज़्यादा बाहर हैं. ठीक है, कैनाइन इसका 1 में है, बट मोलर इसका रिलेशन जो है वो 2 के अंदर है. और तो इसके इन बाहर वाले दांतों को पीछे करने के लिए, जब हमें इसे पीछे करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक्सट्रैक्शंस करनी पड़ेंगी, कुछ दांत को निकालना पड़ेगा ताकि हम इसको आइडियली अचीव कर सकें. सही. क्लास 2 डिवन मैनिपुलेशन की जो फीचर्स की बात करें तो प्रोक्लाइन अपर इंसाइजर, जैसे कि मैंने अभी आपको पिक्चर में बताया कि प्रोक्लाइन अपर इंसाइजर. पीछे चलते हैं, दिखाते हैं आपको. ठीक है, आप प्रोक्लाइन अपर इंसाइजर रिट्रैक्ट करना होता है अपर इंसाइजर को. ठीक है, तो रिट्रैक्ट करने के लिए हमें स्पेस बनाना पड़ता है जिसमें हम क्या करते हैं कि दांत निकालते हैं.
सो इसका ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, रिट्रैक्ट अपर इंसाइजर एंड करेक्ट देयर इंक्लिनेशन, जो वो बढ़े हुए हैं उनको नॉर्मल लाएं और हम उन्हें पीछे लाकर बंद करें। इंक्रीज ओवरजेट, पीछे लाएंगे तो हम आइडियल ओवरजेट को भी अचीव कर लेंगे, आइडियल ओवरबाइट को अचीव करना है हमें। ठीक है, फिर फीचर जो होता है उसका क्लास 2 किनाइन एंड मोलर रिलेशनशिप होता है। तो हमारे पास इसका ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, अचीव करना क्लास 1 इंसाइजर्स को एंड किनाइन रिलेशनशिप को। क्लास 2 के अंदर जो है आप मोलर को 2 में भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन आपका जो केनाइन है वो 1 होना चाहिए। 2 में फिनिश करने के लिए आपको सिर्फ जो है वो ऊपर के दांतों को एक्सट्रैक्ट करना होता है। अपर में से अगर आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आप मोलर को 2 में फिनिश कर सकते हैं। अगर आप ऊपर और नीचे दोनों से ही निकाल रहे हैं तो फिर आपको 1 में फिनिश करना होता है। बट दोनों तरीकों से अगर आपको जो है वो आपका जो केनाइन और इंसाइजर्स होते हैं वो 1 में फिनिश होना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद जो है प्रोकम्बेंट अपर लिप, क्योंकि दांत जब बाहर होते हैं उसके फीचर्स में, तो क्या होता है कि जब आपको उनको भी लिप प्रोकम्बेंसी को भी इम्प्रूव करना होता है, मतलब बेहतर करना होता है। तो जब आप दांत पीछे लेके जाएंगे तो लिप प्रोकम्बेंसी भी है वो भी बेटर हो जाएगी। एक्यूट नेज़ोलेबियल एंगल, एक्यूट नेज़ोलेबियल एंगल जो है वो क्या होता है कि जब एक्यूट होगा मीन्स आपका जब होंठ बढ़ा हुआ होगा, लिप प्रोकम्बेंसी होगी, तो नेज़ोलेबियल एंगल जो है वो भी एक्यूट होगा। तो जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, लिप्स को पीछे लेकर जाएंगे, ये सब काम करेंगे, तो आपके नेज़ोलेबियल एंगल के अंदर भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। सो नेज़ोलेबियल एंगल जो है वो भी हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। क्लास टू डिवाइन मैलोक्लूजन की अगेन जो ये फीचर्स हैं जो हमने बात की है, ये इनके बारे में दोबारा से जो है वो बताया गया है। तो रिट्रैक्ट अपर इंसाइजर्स एंड करेक्ट देयर इंटोनेशन के लिए क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव, अगर आपके पास स्पेसेस मौजूद हैं, little spaces are present, close them. If there is no space present, consider extraction of upper first premolar and use their space to retract incisors. ठीक है, ये वही बात है जो हमने अभी डिस्कस की। अचीव आइडियल ओवरजेट एंड ओवरबाइट, अगेन कैसे हम इसको करेंगे, ट्रीटमेंट अप्रोच हमारी क्या होगी कि जैसे ही हम ट्रीटमेंट जो डीपाइट होती है उसको हम करेक्ट करने के लिए जो है वो डिफरेंट मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम टैट्स के थ्रू कर सकते हैं, हम डिफरेंट इंट्रूजन आर्चवाइज होती हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट डीबाइट अर्ली इन ट्रीटमेंट and maintain that debite correction while retracting the upper incisor। जब आपने debite correct कर ली तो उसको maintain भी रखना है, ये नहीं कि आप, क्योंकि जब हम उसको करेक्ट कर लेते हैं और बाद में जब हम रिट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो दोबारा से एक्सट्रूड होकर डिवाइड बढ़ना चाहिए, उसको भी हमें करेक्ट करना होता है और मेंटेन रखना होता है। सो अचीव क्लास 1 इंसाइजर किनाइन एंड मोलर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर हमें कहीं लगता है कि हमें इलास्टिक्स की नीड है तो हम पेशेंट्स को इलास्टिक भी कराते हैं, उसकी हेल्प से भी थोड़ा सा जो मिलीमीटर का डिफरेंस होता है उसमें वो हमें मेंटेनेंस मिल जाती है, या फिर जो है हमें रिजल्ट अचीव हो जाता है। इम्प्रूव नेजुलेबल एंगल, ensure maximum retraction of upper incisor, upper lip will follow them, क्योंकि जब आप मैक्सिमम रिट्रैक्शन करेंगे upper incisor की तो अपर लिप भी आपका दांतों के ऊपर ही होता है ना, तो दांत पीछे जाएंगे, when the incisors are going back the lip will be going back also। अपर इंक्रीज इज क्रिटिकल इन क्लास 2 ट्रीटमेंट। क्लास 2 ट्रीटमेंट के अंदर जो इंक्रीज आपका मोस्टली 90% जो है वो इंक्रीज जो है वो क्रिटिकल होना चाहिए, मीन्स आपके पीछे का सेगमेंट आगे नहीं आना चाहिए। इम्प्रूव अपर लिप प्रोकमेंसी, अगेन वही बात है कि रिट्रैक्ट करेंगे अपर इंसाइजर को तो लिप की प्रोकमेंसी बेहतर हो जाएगी, होंठ पीछे चला जाएगा। सो इट मे रिक्वायर एक्सट्रैक्शन ऑफ लोअर प्रीमोलर, सो अपर इंसाइजर रिट्रैक्ट आफ्टर द रिट्रैक्शन ऑफ लोअर इंसाइजर। अगर मैंने आपको बताया कि जब हम सिर्फ ऊपर के दांत निकाल रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ अपर फोर्स ओनली, देन वी विल गो फॉर द to finish the modular in 2, or we can retract upper incisors only. But while we are doing upper 4 and lower 4s, upper 4 and lower 5s and lower extractions also, so we have to finish lower spaces before we have to finish the upper spaces, upper and upper arch. So management in class 2 divine malclusion की बात करें, so there are two conditions, mixed condition and growing patient। Okay, so there can be dental discrepancy which can be correct with the help of removal appliances, with molar digitalization, space maintainers, space gainers, habit breaker appliances। Okay, habit breaker में vestibular shields हैं, tongue guards हैं, grips हैं। So myofunctional therapy जो होती है वो भी आपकी मसल्स की जो है वो उसके लिए एक्सरसाइजेज होती हैं डिफरेंट, जिसमें हम टंग पोजिशनिंग जो है वो डिफरेंट जगह पर रखते हैं पेशेंट को,
उसकी हेल्प से जो है हम उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसी को ट्रीट करते हैं। लिप की एक्सरसाइजेज हैं डिफरेंट, उसकी हेल्प से जो है हम डिस्क्रिपेंसी को ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है, ये तो हमारी डेंटल डिस्क्रिपेंसी से ट्रीट होगी, लेकिन अगर कोई स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है, जैसे कोई चिन पीछे है या जो है वो आपका अपर जॉ थोड़ा सा पीछे है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो अगर फॉर मैंडिबुलर डेफिशिएंसी लोअर जॉ की बात है, अगर बच्चा है आपके पास 12 साल का, ठीक है, उसके अंदर अगर लोअर जॉ के अंदर फॉल्ट हो रहा है, तो हम उसको डिफरेंट अप्लायंसेस देंगे, हमारे फंक्शनल अप्लायंसेस होते हैं, वो अप्लायंसेस देंगे, उसकी हेल्प से जो है वो जॉ उसका ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट्स को, बच्चों को दिखाना चाहिए। जब आपका बच्चा जो है 10 साल का हो जाता है या 11 साल 12 साल का बच्चा आपके पास आता है, तो आपने सबसे पहले जो उसमें देखनी है, तो ये चीज़ देखनी होती है कि इसके अंदर कोई स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी तो मौजूद नहीं है। अगर स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी मौजूद है, तो उसको ट्रीट करना हमारा सबसे पहला जो है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए। माल फंक्शनल अप्लायंसेस में हमारे पास फ्रैंकल अप्लायंस है, एक्टिवेटर है, बायोमीटर है, ट्विन ब्लॉक है। कन्वेंशनल ट्विन ब्लॉक सिटी भी जो है वो मोस्टली दे रहे होते हैं पेशेंट्स के अंदर। और अगर कभी ऐसा होता है कि बच्चा 12 साल से थोड़ा सा बढ़ गया है, 13-14 साल पर आ रहा है और जो है वो लेट मिक्स डेंटिशन के अंदर चला गया है, तो फिर उस रिमूवल अप्लायंस हम नहीं दे सकते, फिर हमें उसको फिक्स देना पड़ेगा। फिक्स का भी काम यही है कि वो उस मैंडिबुलर को एफिशिएंसी को हेल्प करे आगे लाने में। तो फिक्स अप्लायंसेस के अंदर हमारे पास जो है वो हेल्प्स अप्लायंस होता है, जेस्पर जंपर होता है, जेजे अप्लायंस। ठीक है, तो इनकी हेल्प से भी जो है हमारे क्या होते हैं, मैंडिबुलर की डेफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ क्लास 2 टिप 1 मिक्स डेंटिशन के अंदर अगर मैक्सिलरी कोई प्रॉब्लम हो, ये तो हमने बात की थी मैंडिबल की, अब अगर मैक्सिला में कोई इशू आ जाता है, तो मैक्सिलरी डेफिशिएंसी को करने के लिए क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट अप्लायंस अगेन है। तो मैक्सिलरी प्रोग्मेटिज्म के लिए हाई पुल हेडगियर देते हैं हम। हाई पुल हेडगियर के ऊपर से आपके पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है, ये बच्ची ने पहना हुआ है। तो ये जो अप्लायंस क्या करेगा, मैक्सिलरी जो आपकी प्रोग्मेटिज्म होगी, मैक्सिला आगे चला गया, उसको पीछे करेगा। ठीक है, उसको पीछे करेगा। उसमें अगर आपने डिफरेंट एंगल से करना है, तो सर्वाइकल पुल होता है, कॉम्बिनेशन है, हाई पुल है, वर्टिकल पुल है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो मैक्सिलरी प्रोग्मेटिज्म को ट्रीट करते हैं। और कॉम्बिनेशन अगर हम इसमें क्या देख कर सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट में चेन भी डेफिशिएंट है और मैक्सिला भी आगे है, या उसके वर्टिकल्स बढ़े हुए हैं, ज़्यादा हैं, इंक्रीज वर्टिकल्स हैं, तो उसके लिए हम उसको रोकने के लिए हाइपर हेडगियर भी दे देंगे, और हम साथ उसके अटैच कर देते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर फंक्शनल अप्लायंस। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो हमारा मैंडिबुलर फंक्शनल अप्लायंस जो है उसको ग्रो करवाएगा, और जो मैक्सिलरी प्रोग्मेटिज्म होगी उसकी हेडगियर से हम उसको भी रोक लेंगे। ठीक है, ये एक और पिक्चर है, देखें क्लियर लग रहा है आपको कि इसमें जो है वो डिफरेंट सर्वाइकल पुल की एक पिक्चर है, एक हाई पुल की पिक्चर है। ठीक है, सो मैनेजमेंट क्लास 2 डे 1 परमानेंट डेंटिशन। अब पहले हमने बात की थी ग्रोइंग पेशेंट्स के अंदर या मिक्स डेंटिशन और लेट मिक्स डेंटिशन की। अगर अडल्ट पेशेंट में हो, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, अगर डेंटल डिस्क्रिपेंसी हो क्लास 2 डे 1 के केस के अंदर, ठीक है, और पेशेंट अडल्ट हो, तो क्या करना होगा, डिस्लाइज अपर होल आर्च विदाउट एनी एक्सट्रैक्शन, या तो हम एक्सट्रैक्शन करें बगैर, जो अगर हमारे पास माइल्ड अगर जो है वो डिस्क्रिपेंसी मौजूद है, तो माइल्ड डिस्क्रिपेंसी हम विदाउट एक्सट्रैक्शन ट्रीट कर सकते हैं। सो वी हैव टू डिस्लाइज अपर होल आर्च विदाउट एनी एक्सट्रैक्शन। ओके, सो डिस्लाइजेशन से क्या होगा कि मोलर रिलेशन आपका अचीव हो जाएगा और आप जो है वो ट्रीटमेंट को फिनिश कर सकेंगे ये। We can go for the use of class 2 elastics. Okay, extract upper first premolars only, extract upper second premolars only, or extraction of upper first premolars and lower second premolars. We can go for the extraction of upper first premolars and lower single incisor or lower only one incisor in lower arch. So these are the methods to treat dental discrepancy in the adult patients. Okay, so there's a picture showing for maxillary and mandibular, in which there's an extraction has been done for upper fours and lower fives, and the space is closing bilaterally with the help of power chain or some mechanics, so we can achieve better results. Camouflage with extraction of upper four only. We can go for the, in some patients there is a skeletal discrepancy also present, so we have to do, but they are not comfortable with the operations or surgical treatment, so we have to do camouflage. So we are doing camouflage with extraction of upper fours only in upper
we are going to extract only first premolars and retracting back the upper segment. So there's a picture which is showing for class 2 elastics, which starts from the upper canine hook to the lower first molar hook, engaging in a oblique position. Okay, so there's a management of class 2 day 1 permanent dentition, but skeletal discrepancy. Before we were talking about the dental discrepancy, now we are studying, we are talking about skeletal discrepancy. So, skeletal discrepancy in growing patients, we are treating with some functional appliances, but in adult, the functional appliance does not work, so we have to go for the orthodontic surgical treatment. So there are also two conditions: maxillary prognathism. So in maxillary prognathism, we have a segmental osteotomy treatment, Leafoot one maxillary setback, alveolar corticotomy, and in mandibular deficiency, we have BSSO mandibular advancement treatment. So bilateral sagittal split osteotomy. So this is a chart which is compiling all the result of growing patient and adult patients treatment, in which it is shown that how we are going to manage these patients. So these are the pictures of the patient which was deficient in mandibular jaw. So the treatment has been done with the help of functional appliances, and we can see the result for the final result in class 2 patient. So we have achieved our ideal overjet, ideal bite, and ideal occlusion, and skeletal class. You can see the face of the patient is became straight. So Alhamdulillah, we have achieved uh, final result. Thank you so much.